Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. I hope so you all are fine. In this video I am explaining unit number 1 in detail. Your unit number 1, that is the human body. In this unit we learn about the human body in detail, how human body systems work. In this unit there are 7 topics: the nervous system, circulatory system, respiratory system, muscular system, skeleton system, digestive system and urinary system. We learn about these 7 topics in detail one by one. So your topic number 1 is the nervous system. So kindly student, open your science book, page number 6. Kindly open it. So let's start with the nervous system. When someone throws a ball toward you, you react by thrusting your hand out and catching the ball. That is your nervous system at work. When nervous system take information from the outside world and from the organ inside your body, it then works out how to respond to that information and tell the various part of your body how to react. ऑन योर बुक पेज नंबर 6 देर इज़ एन एग्जाम्पल. आपकी बुक पेज नंबर 6 पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर कोई भी आपकी तरफ बॉल फेंकेगा तो आप बॉल को कैच कर लोगे. दैट इज़ हाउ योर नर्वस सिस्टम वर्क. ये आपका नर्वस सिस्टम है, ये आपका ब्रेन है जो आपको ये सारे काम करने में हेल्प आउट करता है. सो काइंडली टर्न ऑन योर पेज नंबर 7. ऑन योर पेज नंबर 7, the nervous system is made up of the brain, the spinal cord and lots of different nerves. So nervous system जो है 3 things से made up हुआ है: brain, spinal cord and nerves. Nerve is a fiber that carries impulses throughout the body. इस पिक्चर में जितनी भी ब्लू कलर की लाइन स्प्रेड आउट हुई हैं, these all are the nerves. आपकी एक्चुअली नर्व्स कैरीज इम्पल्सेस. आपकी बॉडी में जो जितने भी मैसेजेस ट्रांसफर्ड आउट होते हैं आपकी ब्रेन की तरफ या ब्रेन से आपके बॉडी के किसी पार्ट की तरफ भी जो मैसेज ट्रांसफर होंगे, दैट इज़ थ्रू द नर्व्स. ये नर्व्स के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर्ड आउट होते हैं. सो योर नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. द मेन थिंग, योर नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द nerves. The next thing is the nervous system has 2 main parts. nervous system के 2 main parts हैं: the central nervous system and the peripheral nervous system. So central nervous system is the brain and the spinal cord, and the peripheral nervous system is all the nerves throughout the body. आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं ये आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बनाती हैं. दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड nerves made the peripheral nervous system. In this picture, red color labeling show the central nervous system, so your brain and spinal cord made the central nervous system, and blue color lines show the nerves, so your nerves made the peripheral nervous system. The nervous systems work this way. The nerves react to something. It might be heat, light, sound or any other stimulus. आपका जो nervous system है वो heat, light या किसी भी other stimulus पे reaction show करता है. Kindly turn on page number 8. There is an example. For example, if you accidentally touch something hot, the nerves in your skin send a messages of pain to your brain. यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सीडेंटली किसी हॉट थिंग को टच कर लिया है तो आपके जो स्किन के ऊपर, जो स्किन के अंदर नर्व्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हुई हुई हैं, वो आपकी जो फिंगर्स में जो नर्व स्प्रेड आउट हुई हुई हैं वो मैसेज को लेकर जाएंगी ब्रेन की तरफ. वो मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र करेंगी? ब्रेन की तरफ. व्हेन द मैसेज रीचेज योर ब्रेन, जब वो मैसेज ब्रेन तक पहुँच जाएगा, your brain work out what to do and then send a message telling your body how to react. अब आपका ब्रेन आपको अलाउ करेगा, आपका ब्रेन जो है वो गेन मैसेज आपकी बॉडी में नर्व्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा कि आपकी बॉडी को कैसा रिएक्शन शो करना है. इन दिस एग्जांपल, द ब्रेन टेल द मसल्स इन योर हैंड टू पुल बैक. अब आपका ब्रेन आपको एक मैसेज ट्रांसफ़र करेगा जो कि आपके हैंड्स के मसल्स को अलाउ करेगा कि आप पुल बैक कर लें, यानी आप अपना हाथ फ़ौरन से हटा लेते हैं. सो योर नर्वस सिस्टम वर्क्स इन दिस वे.
So in this topic number 1, we learn about the nervous system. We learn nervous system is made up of three parts: brain, spinal cord and nerves. Nervous system has two main parts: central nervous system and the peripheral nervous system. Your central nervous system is made up of brain and spinal cord, and your peripheral nervous system is made up of nerves. So, students, on your page number 8, there is a question. Name the two parts of nervous system. So, your two parts of nervous systems are the central nervous system and the peripheral nervous system. How they are different? You learn about the central nervous system and peripheral nervous system in this answer. Your topic number 2 is the circulatory system. Kindly, student, open your science book page number 9. Now we learn about the circulatory system. The circulatory system is a system that sends oxygen and nutrients around the body to all the cells and take away waste material. The main part of the circulatory system are the heart, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक लेकर जाता है और हर सेल से वेस्ट मटेरियल को टेक अवे कर लेता है. लाइक योर नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो थ्री थिंग्स से मेड अप हुआ है. दैट इज द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सो द हार्ट पम्प ब्लड अराउंड योर बॉडी. हार्ट जो है वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप आउट करता है. द ब्लड ट्रैवल इन द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. अब ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्यूब्स के अंदर मूव आउट करता है. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, दैट आर द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. Veins carry blood to the heart, and capillaries are very small blood vessels that link the veins and arteries. So student, in this circulatory system we learn about circulatory system is made up of three things: heart, blood and blood vessels. In this diagram heart is labeled there. So heart pump blood around your body, and the second thing is blood, and third one is the blood vessels. There are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. In this picture, red color tubes show the arteries and blue color tubes show the veins. Arteries carries blood away from the heart. Heart से जो blood को पूरी body के दूसरे organs तक blood को लेकर जाती हैं, these are the arteries, and veins that carry blood to the heart, जो पूरी body से दोबारा heart को blood रिटर्न करेंगी. दीज आर द वेन्स. एंड कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट लिंक द वेन्स एंड आर्टरीज. अब जो आर्टरीज और वेन्स को लिंक्ड करेंगे, दीज आर द कैपिलरीज. ऑन योर बुक पेज नंबर 9 देयर इज अनदर सब टॉपिक: हाउ द हार्ट वर्क. हाउ द हार्ट वर्क. नाउ वी लर्न अबाउट द हार्ट. The heart is divided into four chambers: the right atrium and the left atrium, right ventricle and the left ventricle. We learn about these four chambers in class 4 as well. Heart is divided into four chambers: right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Student, turn on your book page number 10. The right and left side of the heart are separated by the wall called septum. In this diagram there is a wall in the mid of the heart. Heart के दरमियान में एक wall सी separate out किया हुआ है, जिसने right atrium और right ventricle को left atrium और left ventricle से जिसने separate out किया हुआ है, that is the septum. This wall is called the septum. आप इस diagram में गौर से देखें. This diagram show the सेप्टम. हार्ट में जो ब्लड एट्रियम्स में होता है वो वेंट्रिकल एट्रियम राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड के ब्लड से कभी भी मिक्सड आउट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लड हार्ट में एक वॉल है, दैट इज़ द सेप्टम, और ये इस सेप्टम ने हार्ट के दोनों ब्लड्स को सेपरेट आउट किया हुआ है. ऑन द राइट साइड, अब राइट साइड की तरफ देखें इस डायग्राम में, जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम द बॉडी.
अब यहाँ इस राइट साइड से वो ब्लड आएगा जो बॉडी से ब्लड हार्ट में एंटर होगा। ऑन द राइट साइड द एट्रियम फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ आ रहे हैं वो यहाँ से इंटर होगा। सबसे पहले राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। The blood is low in oxygen, so it is pushes into the right ventricle and then to the lungs where it pick up oxygen and get rid of its carbon dioxide. अब यहाँ पर एरोस भी शो हुए हैं। यहाँ पर ब्लड जो है वो आपकी बॉडी से इंटर हो रहा है। ब्लड फ्रॉम बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में से पास्ड आउट होते हुए आपका ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। क्योंकि ये ब्लड आपकी बॉडी से आ रहा है तो आपकी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर चुका है। सो इस ब्लड के पास ऑक्सीजन कम है। सो ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ ताकि हम जब दोबारा ब्रीथ इन करें तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में इंटर हो और वो ब्लड ये ऑक्सीजन रिसीव कर ले। On the left side, the atrium filled with oxygen rich blood from the lungs. This is the pump. This is then pumped into the left ventricle and out around the body to provide cells with oxygen and other nutrients they need. अब लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर एक और एरो शो हो रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब जो ब्लड बॉडी से आया था वो लंग्स की तरफ गया था, अब वो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट साइड से हार्ट में एंटर होगा। स्टूडेंट यू गॉट इट? आई होप सो यू गॉट इट। ब्लड जो है जो लंग्स से पहले हम जो राइट साइड से ब्लड था, हार्ट के राइट साइड का जो ब्लड था वो लंग्स की तरफ गया था ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन कम थी, वो बॉडी से आया है। अब जो लंग्स लेफ्ट साइड हार्ट में लेफ्ट साइड से ब्लड इंटर हो रहा है वो लंग्स से आ रहा है। अब उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो लंग्स से आ रहा है ब्लड वो हार्ट में इंटर होगा। क्योंकि वो लंग्स से आ रहा है तो उसने जब हमने ब्रीथ इन किया तो उसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इंटर हो गई। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट साइड से इंटर होगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल फिल्ड आउट होगा और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप आउट करेगा हमारी पूरी बॉडी में। आई होप सो यू गॉट इट दिस सर्कुलेशन। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दिस। ब्लड जो है वो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो राइट साइड में इंटर हो रहा है, राइट साइड बॉडी से आ रहा है तो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो ऑलरेडी ब्लड ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड कर चुका है हर सेल को। अब उसके पास ऑक्सीजन कम है, वो दोबारा हार्ट में इंटर होगा, हार्ट उसको लंग्स की तरफ भेजेगा। जो ब्लड बॉडी से आ रहा है वो हार्ट के राइट साइड से आएगा और राइट साइड से हार्ट पंप करेगा ब्लड को लंग्स की तरफ। ठीक है, अब जो ब्लड लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है वो लंग्स से एंटर हो रहा है। क्योंकि वो लंग्स से एंटर हो रहा है, लंग्स की तरफ से आ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब जो लेफ्ट साइड से एंटर होगा वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल्ड आउट होने के बाद हार्ट उसको पंप करेगा हमारी बॉडी की तरफ। तो एक साइड जो राइट साइड है, जो राइट साइड में ब्लड मूव कर रहा है वो उसके पास ऑक्सीजन कम है, जो लेफ्ट साइड से ब्लड को मूव आउट कर रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर। So the wall that is present in the middle of the heart, that is the septum, separate these two blood. इन दोनों bloods को कभी भी mixed out नहीं होने देती, that is the septum. This is all about your how heart work. I hope so students you all got it. So on your book page number 10 there is question answer what make up the circulatory system. तो circulatory system किन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? heart, blood and blood vessels. Your question number 2 what is the function of circulatory system. circulatory system का जो function है वो क्या है? So on first three lines, the circulatory system is a system that send oxygen and nutrients around the body to all the cells and take away the waste material. That is the answer of question number 2. Your question number 3, why does your heart beat faster when you exercise? ये question आपका जो है ये conceptual है, इसमें आपका आंसर ये बनता है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी हार्ट बीट क्यों तेज़ हो जाती है। तो जब आप
ड्यूरिंग एक्सरसाइज होते हो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। आप बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हो, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपके बॉडी के हर मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपने 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के नेम राइट करने हैं, दैट आर द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। So these all are about the circulatory system. So your topic number 3 is the respiratory system. The respiratory system is the system that deal with breathing. अब आपका जो breathing system है, यानी आप अभी हमने हार्ट में भी पढ़ा कि हार्ट जो है वो लंग्स की तरफ ब्लड को ट्रांसफ़र आउट करती है, तो जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपके ब्रीथिंग से रिलेटेड सिस्टम है। व्हेन यू ब्रीथ वी टेक इन ऑक्सीजन, वी नीड टू सर्वाइव एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी डोंट नीड। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ऑक्सीजन जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से ब्रीथ आउट जब हम करते हैं तो वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है। द मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द लंग्स। जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो लंग्स है। वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स हैं। वी आल्सो यूज़ आर नोज, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया हुआ है। नेजल कैविटी दैट शो द नोज, नेक्स्ट इज द फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, राइट लंग्स, लेफ्ट lung. There are 2 lungs and that is your respiratory system. And remember, respiratory system is related to your breathing. आप जो सांस लेने का जो सिस्टम है that is the respiratory system. Now we learn about this. So turn on next. When you breathe in, air is inhaled through the nose and mouth and travel through the pharynx, larynx and trachea into the lungs. अब जब भी आप ब्रीथ इन करते हो तो सबसे पहले या तो आप एयर को अपने नोज़ या फिर माउथ के ज़रिए इनटेक करते हो। वो एयर जो है वो नेज़ल कैविटी या माउथ के ज़रिए सबसे पहले इंटर होती है फेरिंग्स में, दैट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड इस ट्यूब के हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं, पहले फेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स है और फिर ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप, हम जहाँ से हवा जो है या एयर जो है जो हम ब्रीथ इन करें वो यहाँ से पास्ड आउट होती है, पास्ड इन और पास्ड आउट होती है। सो व्हेन यू इनहेल्ड नेजर फ्रॉम नोज, एयर पास्ड आउट होगी, पास्ड इन होगी नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में और फिर ट्रैकिया में और फिर आपके लंग्स में इंटर हो जाएगी। दैट दिस इज़ द वे ऑफ एयर पासिंग। ये एयर पास करने का वे है। इन द लंग्स आर अबाउट 600 million tiny air sacs called alveoli. The alveoli take oxygen out of the air and put it into the blood where it is then pumped throughout your body. अब यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप इस सर्कल में जो डायग्राम बनी हुई है अगर आप इसको गौर से देखें तो देयर इज़ एन अल्वुलाई। आपके जो लंग्स हैं ट्रैकिया के बाद आपका आपके जो एयर है वो लंग्स में इंटर होती है। अब जो आपका लंग्स है वो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, दैट आर द अल्वुलाई। अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें तो देयर इज़ आर